कोई भी सरकार होती है वो किसानों पे ही थोपती है कि वो पराली जलाते हैं, लेकिन 2 साल से कुछ ऐसा है नहीं। पहले थोड़ा बहुत लोगों के पास एक्स्ट्रा बच जाता था, जो नहीं बिकता था उसको वो जला देते थे। लेकिन जब से ये पता लगा है किसानों को कि पराली जलाने से इतना भयंकर नुकसान है, तो कोई भी पराली उसके बाद में नहीं जलाता। With a thick smog covering the city, Delhi has witnessed severe and very poor air quality every other day since Diwali this year, continuing the trend in October and November that has existed for the last couple of years. Besides vehicular and industrial pollution and construction activities contributing to the severe air quality, another factor that has been at the center of a raging debate is that of stubble burning or burning of farm residue in the neighboring states of Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Amid this, the Aam Aadmi Party government in Delhi has claimed to have found a solution to the stubble burning problem in the form of a biodecomposer solution to be sprayed on the fields so that the stubble decomposes and there is no need to burn it. News Laundry reached the Fatehpur Jat village in North Delhi, where Delhi's Environment Minister Gopal Rai first launched the spraying of the biodecomposer solution in October this year. We went around the neighboring cluster of villages to know the impact of this solution on the ground and how keen are farmers on using it. तकरीबन हमारे गांव से मैंने ही भरवाए थे 22 फार्म, और 22 फार्म में 2 किसानों का वो स्प्रे करके गए हैं बायोडिकम्पोजर। वो 6 एकड़ मेरे खेत में और 6 एकड़ राजिंदर है, वो जो हमारे गांव के खेत बोता है उसके 6 एकड़, और इसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ हमें। सिर्फ इतना है, उन्होंने ये बोला कि इसको पानी दे दो। वो समय ऐसा था पानी देने लायक नहीं था। वो नहीं तो समय पे पहुंचते हैं और ना समय पे छिड़काव करते हैं। Ompal is one of the only 2 farmers from the Tigipur village of North Delhi whose field the biodecomposer was sprayed on, while 22 had filled the form. He said that the solution showed no results and he had to water and plow as usual to diffuse the farm waste, which cost him a lot of fuel. He also complains about how the government did too little, too late. जब सही समय था, जब ये आए नहीं, अब सुप्रीम कोर्ट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की या जिसकी भी फटकार इन लोगों को लगी है, उसके बाद बार बार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि उन लोगों को स्प्रे के लिए बोलो। अब तो फसल बू गई, हो गया काम है। पोल्यूशन जितना बढ़ना था बढ़ गया। वो तो पीछे से आया, दिल्ली वालों ने तो फिर भी अपने जेब से खर्चा करके ही जुताई बुआई की रही है। We spoke to farm labourer Deepan, who works on the field where Aam Aadmi Party government's Gopal Rai launched the biodecomposer drive. He narrates how there was no real difference between the 8 acres of land where the biodecomposer was sprayed and the plot on which it wasn't. जहाँ छिड़काव हुआ है वहाँ भी वैसा ही है, जहाँ नहीं हुआ है वहाँ भी वैसा ही है, बराबर है, नहीं गला है पलार। यहाँ एक बार जुताई हुआ है वैसा ही है कबार, और जो जिसमें छिड़काव हुआ है उसमें भी वैसा ही है कबार, गला नहीं है। Paddy growing farmers of the Tigipur and Ramzanpur villages said how despite the minister's promise of a free spray, no government servant came to inform them of the process and no decomposer was sprinkled. A farmer who filled out the form last year got a call this year, which again was too late. मैंने लास्ट ईयर भी इसका फॉर्म भर के दिया था, लेकिन वो किसी ने वो जमा किया था नहीं किया था, ये तो मेरे को मालूम नहीं। लास्ट ईयर तो मेरे को कोई कॉल या पूछा नहीं। अब की बार भी ब्लॉक से कुछ लोग आए हुए थे गांव में, उनको मेरा नंबर मेरे कुलीग ने दे दिया था, नाम और फ़ोन नंबर। फिर उनकी कॉल आई, तब तक मैंने अपने खेतों की जुताई उताई करके पानी दे दिया था, सिंचाई कर दी थी। फिर मैंने उनका धन्यवाद किया, सर धन्यवाद आप लोगों का, पर मैंने तो अपने खेतों की सिंचाई कर दी है। अब गोपाल राय जी आए थे, उन्होंने आन करके वहाँ पे 2-4 जो वहाँ पे वर्कर थे, नौकर थे उनके काम करने वाले, उनसे बातचीत करी। बोला हम ऐसे दवाई देंगे, छिड़काव कर देंगे फ्री में। तो छिड़काव वगैरह उससे कोई, लेकिन किसी ने कोई किया नहीं। वैसे ही मतलब हमारे पास पूछने के लिए कोई नहीं आया। 1-2 के पास फार्म आए, उन्होंने फार्म भरे, उनको दवा नहीं मिली। ये केजरीवाल का ढोंग है और ये खाली एडवर्टाइज हो रही है, किसान को इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उन्होंने एक जरूर कही थी कि भाई हम छिड़काव कराएंगे, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया कहीं किसी एकड़ में उन्होंने छिड़काव किया हो या गवर्नमेंट के आदमी कोई आकर के छिड़काव ऐसा कुछ किया हो। कोई हेल्प नंबर नहीं मिला,
कोई गांव में, घर की बात छोड़ो, गांव में ही कोई नहीं आया बताने के लिए भाई ये ऐसे ऐसे वहाँ दवा मिल रही है या डीकम्पोस्ट मिल रहा है, उसको लो और छिड़काव कराओ। A farmer said block development officers did come to him to inform about the decomposer, but he did not opt for it. Why? Because the solution can only be used on the fields that use machines to cut the harvest, and additionally, and more interestingly, stubble or farm waste is not a problem for farmers of Northwest Delhi. They in fact make profits of it and consider it a resource. They sell the stubble anywhere between 2,000 to 8,000 per acre in the form of fodder for cattle, as packing materials for fruits in the mandi, and for crockery packing. आज से 10-15 साल पहले तो सब पशु वाले ले जाते थे, चारे में यूज होता थी। अब पशु कम रखने लगे लोग तो ये हमें बेचनी पड़ती है। तो कुछ 30-40% हिस्सा तो हम इसको पर्सनल यूज में लेते हैं और बाकी का ठेकेदार आता है एक किस्म से, वो खरीदता है और वो हम उसको ज़मीन अवेलेबल करा देते हैं, वो वहाँ पे इकट्ठा करता है, स्टोर करता है और बाद में पूरे साल उसको आज़ादपुर मंडी या चारे में सप्लाई करता है। Stubble is especially a resource in this farming economy for progressive mushroom farmers who use large quantities of stubble to build sheds or hay beds for their crops to grow. They buy it from farmers at decent rates. हमारे लिए पराली तो बहुत ही उपयोगी है। मशरूम में जो है, जो सीजनल मशरूम उत्पादक हैं जो सर्दियों में उगती है, एक तो पराली का हम छप्पर बनाते हैं जिसको शेड बोलते हैं, और दूसरा इसको कटाई करके पराली को, उसको देसी भाषा में गंडासा बोलते हैं मशीन को, उससे कटाई करके इसका कंपोस्ट बना लेते हैं मशरूम जिसमें उगाते हैं। और तीसरा जो है वो टर्निंग मशीन से जैविक खाद हमने बनाया है। उस जैविक खाद का भी मशरूम में हम उसको केशिंग बोलते हैं, वो केशिंग में इस्तेमाल होगा। और इसको जो है हमने हमारे आसपास पराली इस बार कंबाइन ज़्यादा चली थी, मज़दूर कम आए थे, तो इस बार तो सही मायने में पराली महंगी बिकी है। 4500 से 5000 रुपये पर किल्ला एकड़ जिसको बोलते हैं, तो पर एकड़ जो है 5000 की हमने खुद खरीदी है। Farmers also spoke about how stubble burning causes a lot of damage to their fields, and they were aware of the polluting effect on the air. They are also upset about how the subject of stubble burning has been made a huge issue. It's all politics, they say. हाँ, मिट्टी को तो माँ बोलते हैं जी, मोदी जी भी माँ बोलते हैं। अगर धरती तो माता है, जिस तरह हमारा शरीर है जी, इसी तरह मिट्टी का है जी। अगर इसमें आग लगाएंगे तो इसके जो पोषक तत्व हैं वो खत्म हो जाते हैं जी। हम देखते हैं यार आए दिन टीवी पे कि इतना पोल्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट तक के आदेश हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते कुछ लोग, और वो थोपते हैं कि मतलब किसान ऐसा करते हैं। किसान, कोई भी सरकार होती है वो किसानों पे ही थोपती है कि वो पराली जलाते हैं, लेकिन 2 साल से कुछ ऐसा है नहीं। पहले थोड़ा बहुत लोगों के पास एक्स्ट्रा बच जाता था, जो नहीं बिकता था उसको वो जला देते थे, लेकिन जब से ये पता लगा है किसानों को कि पराली जलाने से इतना भयंकर नुकसान है, तो कोई भी पराली उसके बाद में नहीं जलाता अब। और जहाँ तक ये प्रदूषण का सवाल है, ये अपनी खामियों को छुपाने के लिए सरकारें हरियाणा दिल्ली सरकार पे थोप देगी, दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार पे थोप देगी, और ज़्यादातर पोल्यूशन जो है फैक्ट्रियों का है। हमारे यहाँ पे यमुना में पूरे हरियाणा का गंदा पानी पड़ता है, हरियाणा गवर्नमेंट कोई उसको साफ़ नहीं करती, और इतनी फैक्ट्रियाँ हैं, सबका पोल्यूशन वो होता है ज़्यादातर। इन दिनों में मौसम की गिरावट ऐसी होती है कि वो ऊपर तो उठ नहीं पाता, उसको ऊपर से मतलब थोड़ी नमी रहती है ना, तो वो दबा के रखता है नीचे, और गर्मियों में इसलिए महसूस नहीं होता कि हवा में हल्कापन आ जाता है, वो ऊपर उठ जाता है, वरना ये 12 महीने होता है ये पोल्यूशन। The subscription model is something that keeps News Laundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to News Laundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।